Jain Sharaf, I hope you're doing well. Jain sir. Yes, sir, I'm good. How are you, sir? I'm good to hear. Okay, so guys, Sharaf recommended recently from Indian Coast Guard Board Noida. So I think already I covered his journey. You can go to the description box and go through his video. So he shared his experience about his recommendation. And in this video, we'll just dive into the medical part. What happened once you get recommended from the board on the same day? What kind of forms they gave you? How many days? How many test procedures are there that you have to go through? And where you have to go for the medicals and all? Okay. So Sharaf, you can start like once you get recommended, your name is called out. Then from there you can start. What is the procedure? You have taken some gap in between. You directly went for the medical on the next day itself. And what all things form you have to fill, what details they look for, what kind of medical test will be there. Just be open and be transparent about whatever you felt about. Okay, you can start from the day you got recommended, your name called out, and now you making like they taking you for the next procedures, right? Please start. Yes, sir. First of all, I would like to thank Deepak sir for having me on this channel. So this is my second time. Earlier, I have also done a short interview regarding my physics experience. So this time, I'm here to share my medical procedure experience of Indian Coast Guard Assistant Commandant. So जिस दिन हम recommend हुए थे, so I was recommended from the very first batch of 01-2024 ICG Assistant Commandant course. So we were 14 guys who were recommended out of 72. So after my name was called, I was really excited, and it was a really a different feeling. It was a outwardly feeling for me. So it took time for me to sink in. मुझे time लगा कि मैं ठीक है. चीजों को समझ पाऊँ कि मैं फाइनली रिकमेंड हो गया हूँ. सो आफ्टर दैट द प्रोसीजर वाज कि जो भी रिकमेंडेड कैंडिडेट्स थे उनको रखा रखा गया, और बाकियों को अपने लगेज वगैरह देके उनको भेजा गया. तो उसके बाद हमारे डॉक्यूमेंटेशन का थोड़ा काम रहा सर. तो डॉक्यूमेंटेशन में बेसिकली हमें अटेस्टेशन फॉर्म जो बेसिक रहता है वो हमें दिया गया. तो उसके बारे में हमारे को वहाँ पे जो स्टाफ थे उनके द्वारा बताया गया कि क्या क्या फॉर्म्स है, उनको कैसे भरना है, क्या क्या रिक्वायरमेंट रहेगी, किस किस ऑफिसर से उनको अटेस्ट करना है, और क्या क्या चीजें हमें विद इन 1 मंथ वापस से आके डायरेक्टरेट ऑफ रिक्रूटमेंट CGSB नोएडा में सबमिट करनी है. तो वो सारी चीजें रही. और साथ ही में एक डिप्टी कमांडेंट मैम थे, वो हमारे पास आए एंड शी टोल्ड अस अबाउट द फॉलोइंग प्रोसीजर्स कि हमें कहाँ रिपोर्ट करना है, कैसे रिपोर्ट करना है, क्या क्या मेडिकल के रहेंगे, और थोड़ी बहुत और गाइडलाइंस. So now I would like to directly jump into the medical procedure. So I was recommended on 14th of July this year. और उसके it was Friday that day. और उसके 2-3 दिन बाद 18th of July 2023, तो ट्यूसडे के दिन हमारा रिपोर्टिंग रहता है. तो रिपोर्टिंग में बेसिकली हमें 3-4 डॉक्यूमेंट्स लेके जाने होते हैं. तो जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था, डॉक्यूमेंटेशन प्लेज अ रियली इंपॉर्टेंट रोल. हमें कोई भी डॉक्यूमेंट स्किप नहीं करना, और हमें सारे डॉक्यूमेंट्स हर टाइम अपने साथ रखने हैं, क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन हर एक स्टेप पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. तो यहाँ पे हमें एक मेडिकल रिकमेंडेशन लेटर मिला. इट वाज अ सॉर्ट ऑफ इंस्ट्रक्शन लेटर. उसमें सारे इंस्ट्रक्शन दिए गए थे कि वेयर वी हैव टू रिपोर्ट, और क्या क्या डॉक्यूमेंट साथ में लेके आने हैं, और क्या टाइमिंग रहेगी. So we reported on 18th of July, Base Hospital, Delhi, Cant. So I went there. So I took with me the medical recommendation letter and photo, ID proof, और ये सारी चीजें लेकर ओरिजिनल एडमिट कार्ड साथ में ले गए थे. तो ये सारी चीजें लेकर हम 8 बजे सुबह रिपोर्टिंग टाइम था. सो वी रिपोर्टेड टू द मेडिकल बोर्ड. तो वहाँ पे एक JCO साहब थे, तो ही ब्रीफ्ड अस अबाउट ऑल द प्रोसीजर्स की ये चीजें होंगी. तो बेसिकली हमारे जो मेडिकल का पूरा प्रोसीजर था, तो थोड़ा लेंदी था वो. जनरली SSBs में, चाहे नेवी की हो, चाहे आर्मी एयरफोर्स की हो, वो यूजुअली 3-4-5 दिन में कवर हो जाती है. बट इट टुक अराउंड 11 डेज, और हर दिन सिर्फ एक ही पॉइंट हमारा कवर हो पाता था. देयर आर अराउंड 9 to 10 पॉइंट्स जो कि कवर होने होते हैं मेडिकल में, जिसके बारे में मैं थोड़ी टाइम में आऊंगा. सो ये सारी चीजें होने के बाद लास्ट में मेडिकल कॉन्फ्रेंस होता है, और उसके बाद यू आर डिक्लेयर्ड मेडिकली फिट, और या आपको टेम्परेरी रिजेक्शन मिलता है, या आपको परमानेंट रिजेक्शन मिलता है. तो ये सारी चीजें, अगर TR मिलता है तो फिर फर्दर प्रोसीजर्स, उसमें मैं लास्ट में आना चाहूंगा सर. तो डिस्कसिंग अबाउट द पॉइंट्स जो कवर किए जाते हैं मेडिकल्स में, देयर आर बेसिकली 9 पॉइंट्स, स्टार्टिंग फ्रॉम स्टाफ सर्जन डिपार्टमेंट में हमारा ब्लड और यूरिन टेस्ट होता है. नेक्स्ट ECG, एक्सरे, अल्ट्रासोनोग्राफी, और डेंटल चेकअप होता है. उसके बाद ENT,
सर्जिकल, मेडिसिन एंड लास्ट दिन में कॉन्फ्रेंस होता है। ये सारे टेस्ट होने होते हैं बट नॉट इन द सेम ऑर्डर, बिकॉज इट इज अ हॉस्पिटल। सो वहाँ पे ओपीडी पेशेंट्स भी रहते हैं और बहुत सारे Correct. अदर पेशेंट्स भी रहते हैं। तो उसके लिए दे प्रेफर फर्स्टली दे गिव प्रेफरेंस टू देम, एंड आफ्टर दैट जो भी कैंडिडेट्स जो रिक्रूटमेंट के लिए आए उनको प्रेफरेंस दिया जाता है। तो इट टेक्स टाइम, एंड ये बहुत ही एक पेशेंस का काम है, हमें पेशेंस हर टाइम मेंटेन रखनी है, क्योंकि दिन भर आपको 4-5 घंटे वेट करना रहता है वहां पे, और Mm-hmm. जाके सिर्फ आपका शाम को या ब्लड या यूरिन सैंपल लिया जाएगा। तो थोड़ा सा पेशेंस का सर यहाँ पे बहुत पेशेंस के साथ डील करना है। तो नाउ डिस्कसिंग ब्रीफली अबाउट दीज पॉइंट्स। सो टुडे 15 अक्टूबर सारे बैचेस ओवर हो चुके हैं। देर आर अराउंड 13 बैचेस इस बार, एंड इट टुक थ्री मंथ्स एफएसबी कंप्लीट होने को, और अब 2 मंथ्स के बाद आई थिंक नवंबर या दिसंबर में मेरिट लिस्ट आएगी। तो तब तक मेडिकल प्रोसीजर्स चलते रहेंगे 11-12 दिन सारे बैचेस का। तो इस ट्यूसडे भी लास्ट बैच ने रिपोर्ट किया था BHDC बेस हॉस्पिटल दिल्ली कैंट पे। सो फर्स्ट डे जैसा हमारा शुरू होता है, तो V14 रिपोर्टेड देयर। स्टाफ सर्जन में हमारा ब्लड और यूरिन टेस्ट लिया जाता है। ब्लड टेस्ट में बेसिकली कुछ एक आपके पॉइंट्स रहते हैं जो चेक किए जाते हैं। जैसे बेसिक पॉइंट्स आर ब्लड शुगर लेवल, आपका प्लेटलेट काउंट, हीमोग्लोबिन Mm-hmm. काउंट, लिपिड प्रोफाइल, और साथ में HB, हीमोग्लोबिन काउंट वगैरह। और साथ में यूरिन में भी कुछ एक मिनरल्स जो यूरिन में होने चाहिए वो डिटेक्ट किए जाते हैं, लाइक यूरिया एंड कुछ एक और उसमें टेस्ट होते हैं। तो ब्लड सैंपल देना है। और इसके लिए कुछ एक टिप्स मैं साथ साथ में देना चाहूंगा, जो भी पॉइंट रहेंगे। तो इसके लिए टिप ये है कि हमें फ्लूइड कंजम्पशन अच्छा रखना है, बिकॉज जो यूरिन सैंपल है उसमें बिलीरुबिन कंटेंट ज्यादा डिटेक्ट होता है, और ये भी एक TR का रीजन बनता है लास्ट में, जब लास्ट में Okay. कॉन्फ्रेंस होता है। क्योंकि हमारे साथ में और भी कैंडिडेट बेस हॉस्पिटल में चले हुए थे, जिनके अपील मेडिकल बोर्ड थे सर। हम Oh, इनिशियल मेडिकल बोर्ड के लिए गए हुए थे, और कुछ एक अपील के लिए NDA एंट्री से आए हुए थे, नेवी की एंट्री से आए हुए थे, और अलग अलग एंट्री से आए हुए थे। तो उनमें से एक कैंडिडेट था जिनको बिलीरुबिन की भी प्रॉब्लम थी। तो बेटर ये है कि हम फ्लूइड कंजम्पशन रखें, इलेक्ट्रोलाइट जैसे लेमनेड वगैरह पीते रहे उस टाइम पे, और कुछ दिन हेल्दी फूड हम कंज्यूम करें, तो वो एक अच्छा मतलब सेफ साइड रहेगा। तो स्टाफ सर्जन में ब्लड और यूरिन टेस्ट लिया, पहला दिन हमारा सिर्फ यही हुआ था। सो okay. इट वाज ऑल अबाउट द फर्स्ट डे। तो इसके बाद द नेक्स्ट डे वाज ECG, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ का जो टेस्ट होता है, ECG कंडक्ट किया गया। इसमें बेसिकली हार्ट से रिलेटेड टेस्ट होता है, तो वो भी इजीली हो गया था। उसके लिए तो ऐसा कुछ प्रायर प्रिपरेशन या कुछ तैयारी ऐसे होती नहीं है। सो जंपिंग टू द थर्ड डे, एक्सरे। एक्सरे बेसिकली चेस्ट का लिया जाता है। उसमें बेसिक जो बॉडी स्ट्रक्चर फॉर्मेशन है, क्योंकि सारे आर्म फोर्सेस में एक बॉडी स्ट्रक्चर का और एक बंदे के Standard. फिट होने का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है, एक स्टैंडर्ड है सर। Correct. सो इट इज ऑल्सो रियली इंपॉर्टेंट, क्योंकि चेस्ट एक्सरे में ये रहता है कि बेसिक वो पिजन चेस्ट चेक करते हैं कि चेस्ट फॉर्मेशन ठीक है, जो रिब केज है वो प्रॉपर्ली फॉर्म्ड है, डिफॉर्म तो नहीं है, ये चीजें चेक होती है बेसिक एक्सरे में। तो चेस्ट का एक्सरे लिया जाता है, बाकी कोई बॉडी पार्ट का एक्सरे नहीं होता है। और दूसरी चीज मैं एक ऐड करना चाहूंगा, इसमें पंक्चुअलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि हमारे JCO साहब मेडिकल बोर्ड में थे, तो प्रसाद साहब जब बोलते थे कि सुबह 8 बजे आना है, तो हमें 8 बजे आना होता था, क्योंकि जितना हम पंक्चुअल रहेंगे उतनी हमारे टेस्ट इजीली होंगे और जल्दी होंगे। Correct. और Right. वहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हम एक डिसिप्लिन मेंटेन रखें, एक पंक्चुअलिटी मेंटेन रखें, और जो भी हॉस्पिटल का, मिलिट्री हॉस्पिटल है, वहाँ का कोई डेकोरम होता है, हम उस चीज को मेंटेन करें। तो वो सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, और कहीं ना कहीं वो बहुत अफेक्ट करता है। मैंने ये चीज नोटिस करी सर अपने पूरे एक्सपीरियंस में। सो Okay. नेक्स्ट चीज आफ्टर एक्सरे, इट वाज अल्ट्रासोनोग्राफी, अल्ट्रासाउंड जिसे कहते हैं। अल्ट्रासाउंड में बेसिक हमारे इंटरनल ऑर्गन्स चेक किए जाते हैं, कि वो इसमें बेसिक किडनी स्टोन तो नहीं है, गॉल ब्लैडर में स्टोन तो नहीं है, या कोई भी इंटरनल ऑर्गन कोई No. डिफॉर्मिटी तो नहीं है, या कोई इंटरनल प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई डिजीज वगैरह। तो इसमें बेसिक चेकअप रहता है। तो इसमें भी वही सर, हमें दिन भर वेट करना पड़ता था, और बाद में हमारा टेस्ट होता था। तो इसमें भी यही है कि जितना फ्लूइड कंजम्पशन, पानी कंजम्पशन रहेगा, तो USG अल्ट्रासोनोग्राफी में आपकी जो इमेजिंग है अंडर बॉडी पार्ट्स की, इंटरनल ऑर्गन्स की, वो क्लियर आती है। तो इट इज बेटर कि हम फ्लूइड कंजम्पशन वगैरह अच्छा रखें। और क्योंकि गर्मी का टाइम था, तो वैसे भी स्वेटिंग वगैरह बहुत सारी चीजें हैं, तो वैसे ही डिहाइड्रेशन के चांसेस रहते हैं। तो इट इज रिकमेंडेड, हाईली रिकमेंडेड, कि आप लोग फ्लूइड इंटेक काफी ज्यादा रखें। पानी इंटेक जितना ज्यादा रखेंगे, आपके जो भी रिजल्ट्स है वो अच्छा रहेगा, और आपकी ओवरऑल हेल्थ वैसे भी, फ्लूइड कंजम्पशन बहुत जरूरी है लाइफ में। सो दिस वाज अबाउट USG अल्ट्रासोनोग्राफी। इट वाज द फोर्थ डे।
हमारे इसी सीक्वेंस में हुआ था जिस सीक्वेंस में मैं आपको बता रहा हूँ। स्टाफ Okay. सर्जन, ब्लड यूरिन टेस्ट, ईसीजी, एक्सरे एंड यूएसजी। 4 days आर ओवर नाउ। सो नाउ मूविंग टू द फिफ्थ डे, इट वाज आवर आई डे। इस दिन हमारा आई चेकअप हुआ था, होलिस्टिक आई चेकअप वाज देयर। और ये चीज मतलब एक दिन में एक से ज्यादा टेस्ट होना थोड़ा पॉसिबिलिटी कम है, क्योंकि जो भी Okay. डॉक्यूमेंट्स आपके बोर्ड से एक बार पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में जाते हैं। मान लीजिए आज आज हमारा आय का है, तो हमारा डॉक्यूमेंट रनर हमारे सारे डॉक्यूमेंट्स लेके आय डिपार्टमेंट में जाएगा, और उसके बाद वहां पे जब सबका क्लियर हो जाएगा, जो भी आगे होता है रिपोर्ट, तो वो फिर फॉरवर्ड होके हमारे बोर्ड में वापस जाता है। फिर उसके बाद अगले दिन फिर वो डॉक्यूमेंट रनर उस चीज को लेके दूसरी जगह जाता है। तो डॉक्यूमेंट का पहुंचना बहुत जरूरी है उस डिपार्टमेंट में, तभी हमारा जो आगे का मेडिकल प्रोसीजर है वो उस दिन की कार्रवाई जो है वो आगे की जाती है। सो नाउ टॉकिंग अबाउट आई। सो आई में बेसिकली हमारा विजन टेस्ट हुआ था, कलर ब्लाइंडनेस टेस्ट हुआ था, और इंटर ऑक्यूलरी प्रेशर वो वाला टेस्ट हुआ था, और एक दो मशीन्स थे जिसमें हमें पर्टिकुलरली उन चीजों को टेस्ट किया गया था। लाइक विजन के लिए हमारा जो मशीन रहता है उसमें हमारा विजन टेस्ट किया गया था। एंड टॉकिंग अबाउट द विजन, 6/9 इज एक्सेप्टेड इन इंडियन कोस्ट गार्ड। तो इसमें एक मेडिकल के एक पीडीएफ है जो इंडियन कोस्ट गार्ड की वेबसाइट पे है। सो आई वेंट थ्रू इट। तो मैं चैनल पे वो शेयर कर दूंगा, उसमें मेडिकल स्टैंडर्ड्स दिए गए हैं सर, कि क्या क्या रहते हैं। तो इट इज रिटन कि 6/9 जो रिकमेंडेड है, और करेक्टेड 6/6 होने चाहिए अगर आई ग्लास वियर करते हैं तो। एंड मायोपिया के लिए -0.75 टू हाइपरमेट्रोपिया +1.5 डायोप्टर का जो भी पावर रहता है, इट इज जनरली एक्सेप्टेबल इन इंडियन कोस्ट गार्ड मेडिकल स्टैंडर्ड्स के अंदर रहता है। एंड उसके बाद हमारा कलर ब्लाइंडनेस का टेस्ट होता है सर। इसमें एक Hmm. बुकलेट रहती है, उसमें वेरियस डॉट्स एंड इमेजेस आर देयर, और उसमें एक अल्फाबेट या डिजिट समथिंग होती है, वो हमें रीड करना रहता है। डिफरेंट कलर के रहते हैं कि हम डिस्टिंक्ट कलर को पहचान सकते हैं डिफरेंट कलर्स के बीच में। सो ये Okay. रहता है। उसके बाद हमारे रेटिना की स्कैनिंग होती है, रेटिना चेक किया जाता है कि रेटिना में कोई स्पॉट तो नहीं है, कोई होल तो नहीं है, ये सारी चीजें। तो ओवरऑल आई का ऐसा रहता है, ये सारी चीजें चेक की जाती है, और हमें किसी भी टेस्ट का रिजल्ट उसी वक्त नहीं पता लगता है। सारे हमारा जो भी हमारा एक डॉक्यूमेंट डोजियर तैयार होता है, उस डोजियर में डेली के जो चेकअप्स होते हैं उसके वो डॉक्यूमेंट्स इकट्ठा होते रहते हैं। तो डेली इट इज बीन रिकॉर्डेड इन इट। सो इसके साथ हमारा फिफ्थ डे ओवर होता है। तो आई के लिए भी बेसिक यही है कि जब भी हम कोई टेस्ट के लिए जा रहे हैं, तो हमारे बेसिक यही कि हम क्लीनलीनेस मेंटेन करें। हम आंखों में पानी वगैरह मार के लुब्रिकेंट्स वगैरह डाल के अच्छे से जा सकते हैं, जिससे हमारा विजन वगैरह अच्छा हो। और दूसरी चीज, हमने किसी भी टेस्ट में घबराना नहीं है सर, क्योंकि जितना हम घबराएंगे चीजें गलत होने के चांसेस है। Correct. तो बी कॉन्फिडेंट, अगर आप वो रहेंगे तो ये चीज मैंने नोटिस करी, क्योंकि कुछ हमारे साथी घबरा रहे थे टेस्ट से रिलेटेड, तो वो बैकफायर करी थी वो सारी चीजें सर। तो कॉन्फिडेंट रहना एक बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी टेस्ट के लिए। और नेक्स्ट उसके बाद हमारा डेंटल चेकअप हुआ था। इट इज ऑल्सो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट पॉइंट इन द होल एसएसबी मेडिकल प्रोसीजर्स। सो डेंटल के लिए फिर वही सुबह हमारा डॉक्यूमेंट रनर हमारा डॉक्यूमेंट्स लेके आए थे, और उसके बाद हम सारे उस डिपार्टमेंट पे पहुंचे थे। और डेंटल के लिए बेसिकली डेंटल पॉइंट्स आर इम्पोर्टेंट। सो देर आर बेसिकली 20 to 22 डेंटल पॉइंट्स। अगर जो थर्ड मोलर टीथ है वो टूथ है वो वेल फॉर्म नहीं है, तो 20, अदर केस में 22। ईच टूथ इज assigned a particular point according to some dental formula is there। तो उसके अकॉर्डिंग 14 मिनिमम डेंटल पॉइंट्स होने चाहिए। तो ये तब आप मेडिकली फिट माने जाओगे। एंड जॉ स्ट्रक्चर इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, कि जो जॉ है वो प्रॉपर जो है, वेल फॉर्म्ड है, डिफॉर्म नहीं है, तो ये सारी चीजें चेक की जाती है उसमें। और ब्लीडिंग गम पायरिया जैसे प्रॉब्लम्स है, Hmm. वो चीजें तो नहीं है, तो प्रॉपर स्कैनिंग होती है उसकी। और देखा जाता है कि ऐसे क्या क्या माउथ रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है, इन्फेक्शन या कोई चीज ना नहीं होनी चाहिए। तो उसके बाद डेंटल में बेसिक यही है। तो टिप मैं ये दूंगा कि जब डेंटल हो उससे वैसे ब्रश डेली करना चाहिए, पर उस दिन प्रॉपर आप क्लीन करके जाएं, क्योंकि उस दिन ऐसे प्रेजेंट करेंगे डॉक्टर के सामने, तो मेडिकल ऑफिसर के सामने, तो वो बिल्कुल ही एक गलत इंप्रेशन डालता है। तो ये सारी चीजें माउथ वॉश वगैरह प्रॉपर से करके जाएं, और ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है सर। बाकी ओवरऑल हेल्थ एंड हाइजीन का हमें ध्यान रखना ही चाहिए। बाकी प्रिपरेशन के लिए हम ये सारी चीजें कर सकते हैं सर। सो टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट पॉइंट रिगार्ड इन द मेडिकल प्रोसीजर। सो इट वाज ईएनटी, ईयर नोज एंड थ्रोट। Okay. इसमें बेसिकली हमारे ईयर नोज और थ्रोट का चेकअप होता है।
तो जो मेडिकल ऑफिसर होते हैं वो सबसे पहले हमारे कान को चेक करते हैं। तो इसमें भी टिप ये है कि हम जो ईयर वैक्स है ये भी एक रिजेक्शन का कारण बनता है। बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि हम एक वैक्स की क्लीनिंग करवा के जाएं, और ईयर बिल्कुल साफ होना चाहिए, हाइजीनिक कंडीशन में होना चाहिए। तो उसके बाद हमारा एक टेस्ट हुआ था ऑडियोमेट्री का। तो वो Okay. BHDC में नहीं था, तो हमें आर भेजा गया था, वहां पे हमारा ऑडियोमेट्री का टेस्ट हुआ था। जनरली या तो ये विस्परिंग टेस्ट कराते हैं, जिसमें अ पर्सन स्टैंड इन फ्रंट ऑफ यू और हमारे कान के यहाँ एक पेपर लगा के स्क्रैच करता है, और वन पर्सन स्टैंड्स बिहाइंड यू और वो कुछ विस्पर करता है कुछ वर्ड्स। तो वी हैव टू आंसर कि Repeat क्या it. वो बोल रहे हैं, उसको रिपीट करना रहता है। तो वो नहीं हुआ था हमारा, हमारा ऑडियोमेट्री का टेस्ट हुआ था, जिसमें हमें एक हेडफोन्स पहनाए जाते हैं। तो उसमें वेरियस फ्रीक्वेंसीज पे अलग अलग लेवल की साउंड प्रोड्यूस किए जाते हैं वेरियस फ्रीक्वेंसीज पे। तो हमें बताना रहता है कि हम कौन सी साउंड हमें सुनाई दी या नहीं। तो उससे Correct. हमारे जो ऑडियोमेट्री का टेस्ट रहता है कि हम कितने फ्रीक्वेंसी पे सुन पाते हैं कान। वो तो ये भी इम्पोर्टेंट था, इसमें भी हमारे कुछ कैंडिडेट्स प्रॉब्लम आई थी ईयर में भी, उसमें भी मेडिकल रिजेक्शन मिला था, कुछ लोगों को TR मिला था। तो ये भी इम्पोर्टेंट है कि ईयर का ध्यान रखा जाए, ईयर के हेल्थ का। तो उसके बाद नेक्स्ट है नोज। नोज का चेक किया गया था। नोज में भी एक पॉपुलर रिजेक्शन का रीजन रहता है DNS, डेविएशन इन नेजल सेप्टम। जो नेजल Yes. सेप्टम में बेसिकली साइनस के कारण या किसी कारण से डेविएशन रहता है, तो ये क्योरेबल है। ये सारी चीजें हम पहले ही अगर प्रायर टू द मेडिकल प्रोसीजर या तैयारी के साथ साथ भी हम इन मेडिकल स्टैंडर्ड्स का ध्यान रखें, तो बाद में हमारे लिए इजी होता है। तो DNS का इलाज पहले किया जा सकता है, वरना DNS डिटेक्ट हो जाए तो वो भी एक रिजेक्शन का कारण बनता है। सो बाकी नोज में देखा जाता है कि कोई इन्फेक्शन वगैरह तो नहीं है, DNS ना हो। बाकी नोज में ऐसा कुछ चेक नहीं किया जाता है। और आफ्टर दैट थ्रॉट। थ्रॉट का ये है कि टॉन्सिलाइटिस तो नहीं है, कोई सिवियर इन्फेक्शन तो नहीं है, थायराइड ऐसा कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ऐसा ये सारी चीजें उसमें डिटेक्ट की जाती है ENT में। सो नेटवर्क का कुछ इश्यू था। यस सर, नाउ Network यू आर issue. ऑडिबल। एम आई ऑडिबल सर? Yes, yes, you're audible. Please proceed. यस सर। यस सर, सो आई वाज डिस्कसिंग अबाउट द ENT। Nose. तो Hmm. इसके जो स्टैंडर्ड्स, ईयर नोज और थ्रॉट का जो स्टैंडर्ड्स रहता है, तो ये सारी चीजें हैं। ईयर में वैक्स का एक इशू रहता है, और नोज में DNS का इशू रहता है। तो ये सारी चीजें सर्जरी से DNS क्योर हो जाता है। तो ये सारी चीजें हमें पहले ही कर लेनी चाहिए जब हम किसी भी डिफेंस सर्विसेज के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, क्योंकि हेल्थ हेल्थ स्टैंडर्ड्स एंड फिजिकल स्टैंडर्ड्स इज अटमोस्ट इन एनी डिफेंस Correct. फील्ड। सो ये चीजें हम पहले कर ले तो बाद में हमारे लिए इजी रहेगा सर। तो टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट डे, तो इसके साथ हमारा 7 डे और 7 पॉइंट कवर हुआ। हर दिन हमारे एक ही पॉइंट हो रहे थे, पर कुछ बैचेस के एक से ज्यादा भी पॉइंट हुए, और हमें पहले ही इंस्ट्रक्शन दिया गया था ये सब आपकी टैक्टिक्स है कि आप कितनी जल्दी चीजों को करवाते हो और कितने जल्दी आप अपना मेडिकल कंप्लीट करते हो। क्योंकि Correct. वहां पर बहुत सारे पेशेंट्स हैं, तो उनको प्रायोरिटी दी जाती है, और जो रिक्रूटमेंट के लिए आए होते हैं उनको थोड़ा सा डिले किया जाता है। तो ये है कि हम अगर उनसे कोऑपरेट करें थोड़ा, तो वो जल्दी भी कर देते हैं। तो उसके बाद ये कि 2 पॉइंट दिन में कवर हो जाए तो एक दिन हमारा और सेव हो जाता है सर। तो टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट पॉइंट, सो द नेक्स्ट पॉइंट वाज सर्जिकल। जो हमारा सर्जिकल असेसमेंट हुआ था, तो उसके रिगार्डिंग, तो सर्जिकल असेसमेंट में बेसिकली पोस्चरल डिफॉर्मिटीज, जो बॉडी का स्ट्रक्चर है वेल फॉर्म्ड है, फ्लैट फुट, बो लेग्स, नॉक नीज, स्कॉलियोसिस, काइफोसिस, लॉर्डोसिस, ये सारी चीजें चेक की जाती है। बेसिक पोस्चरल डिफॉर्मिटीज जो रहती है कि क्या क्या प्रॉब्लम है। तो इसमें बेसिकली ये है कि हमें कॉन्फिडेंट रहना होता है। मेडिकल ऑफिसर रहते हैं, हमारी पूरी बॉडी की प्रॉपर स्कैनिंग की जाती है उस टाइम पे। तो हमें फुल कॉन्फिडेंट होकर रहना पड़ता है। हम बॉडी स्ट्रक्चर हम बिल्कुल अच्छे से वहां पे खड़े रहे, जो भी एग्जामिनेशन हो रहा है हम कोऑपरेट करें डॉक्टर के साथ, मेडिकल ऑफिसर्स के साथ, ताकि वो अच्छे से हमारा एग्जामिन कर पाए। तो इसी के Correct. साथ साथ स्वेटी स्वेटी पाम्स और शेकी हैंड्स का भी उस टाइम पे टेस्ट होता है सर, कि स्वेटिंग तो नहीं हो रही है। स्वेटी पाम्स इज ऑल्सो वन ऑफ द पॉपुलर रीजन Rejection. फॉर मेडिकल रिजेक्शन। तो स्वेटी पाम्स भी होता है, ये भी क्योरेबल है। और कुछ एक हैक्स भी है इनके लिए कि जैसे कुछ पाउडर वगैरह भी लगाते हैं या कुछ ऐसा है, तो ये सारी चीजें भी रहती है वहां पे। बहुत सारी चीजें मुझे तो पहली बार जानने को मिला। तो Mm-hmm. सर मेरा ये सेकंड मेडिकल एक्सपीरियंस था, क्योंकि इससे पहले मेरा SSC सब इंस्पेक्टर इन Acha. CRPF में सिलेक्शन हुआ था। तो उसमें भी मैंने ये मेडिकल प्रोसीजर किया था, पर ये एक ही दिन में हो गया था हमारे ये सारे पॉइंट्स। तो यहाँ पे इट टुक प्रीटी गुड टाइम। सो बट सारा गेम पेशेंस का है। हमें पेशेंस के साथ, डिसिप्लिन के साथ और एक पंक्चुअल रह के सारी चीजों को कोऑपरेट करते हुए चीजों को आगे ले जाना है।
और तो इसके बाद ये सारी चीजें टेस्ट हुई, और उसमें जो जेनिटल्स है ये भी टेस्ट किए जाते हैं। उसमें मेजरली जो जेंट्स में हाइड्रोसील की प्रॉब्लम आती है, हाइड्रोसील ये भी ऑपरेट करके ठीक हो जाता है। ये भी एक मेडिकल रिजेक्शन का रीजन है। हमारे साथ भी एक कैंडिडेट थे जो अपील के लिए बीएचडीसी में आए थे, उनको ये प्रॉब्लम थी। और जो स्पोर्ट्स पर्सन रहते हैं उनको जनरली ये दिक्कत रहती है, जो एथलेटिक्स से रिलेटेड रनिंग, स्प्रिंट और इन सब में रहते हैं। तो ये सारी हम्म। चीजें इनका प्रॉपर तरीके से चेक होता है। तो यही है कि हमें कॉन्फिडेंट रहना है सर्जिकल में, और ये है कि जो बॉडीली हेयर्स है उस टाइम हम प्रॉपर क्लीन करके जाएं, ताकि मेडिकल एग्जामिनेशन में कोई ऐसी प्रॉब्लम ना आए। और हमें हिचकिचाना नहीं है, मेडिकल ऑफिसर को अपना काम अच्छे से करने देना है, तो कोऑपरेट करना है सब। तो सर्जिकल में बेसिकली ये सारी चीजें हुई। सो इसमें कैरिंग एंगल भी चेक किया जाता है सर। कैरिंग एंगल इज वन ऑफ द पॉपुलर रीजन ऑल्सो। तो कैरिंग एंगल में बेसिकली आर्म का जो एंगल है, ये वो चेक किया जाता है एल्बो का। तो मेल के लिए कोस्ट गार्ड में इट शुड बी लेस देन 10 डिग्री, इससे ज्यादा एडमिसिबल नहीं है, परमिसिबल नहीं है। ये भी एक रिजेक्शन का रीजन है सर। सो कैरिंग एंगल ये भी एक्सरसाइजेस से, फिजियोथेरेपी से क्योर किया जा सकते हैं। ये सारी पोस्चरल डिफॉर्मिटी, जो फ्लैट फुट, बो लेग्स, ये भी क्योर किए जा सकते हैं। तो ये हम पहले चेक कर ले तो बेटर है, क्योंकि सारे प्रोसीजर हो जाए, आप रिकमेंड हो जाओ, उसके बाद मेडिकल आउट हो जाओ, ये बहुत बुरा रहता है। तो इससे पहले हम डिटेक्ट कर ले तो अच्छा है, और क्योर कर ले तो इसी के साथ हमारा 8th डे कंप्लीट होता है सर, सर्जिकल। सो द नेक्स्ट डे, द 9th डे, इट वाज मेडिसिन। मेडिसिन में बेसिकली जो भी हमारे स्टाफ सर्जन में फर्स्ट डे टेस्ट हुए थे, ब्लड सैंपल और यूरिन सैंपल, वो हमारे मेडिकल ऑफिसर के पास जाते हैं। और जो भी हमारे टेस्ट हो रहे हैं, जो मेडिकल ऑफिसर्स हैं, वो जनरली लेफ्टिनेंट कर्नल रैंक के ऑफिसर रहते हैं सारे। एंड द बोर्ड प्रेसिडेंट, वो हमारे कर्नल रैंक के रहते हैं। कर्नल खेंका मैम हमारे टाइम पे बोर्ड प्रेसिडेंट थे। तो मेडिकल कॉन्फ्रेंस लास्ट में हुआ था। तो मेडिसिन डे के दिन बेसिकली सबसे पहले हाइट, वेट, चेस्ट मेजरमेंट, बीपी और हार्ट बीट और पल्स रेट चेक किया जाता है। तो इस टाइम पे हमें घबराना नहीं है। जैसे बीपी के टेस्ट वगैरह होते हैं, उस टाइम पे घबरा जाते हैं कुछ कैंडिडेट्स, तो उस टाइम पे बीपी का थोड़ा ऊपर नीचे रहता है। तो उस टाइम पे हम बिल्कुल कंफर्टेबल होकर, रिलैक्स होकर ये टेस्ट को परफॉर्म करें, बीपी वगैरह चेक कराएं, तो इतना दिक्कत नहीं रहता है। और जिनको पहले प्रॉब्लम है, क्योंकि हाइपरटेंशन और बीपी थोड़ा जेनेटिक भी रहता है, इनहेरिटेड होता है, तो ये हम पहले टेस्ट करें तो योगा या इन सारी चीजों से, थोड़े बहुत मेडिकेशन से ये क्योर भी किया जा सकता है सर। तो बेटर कि हम ये चीजें पहले डिटेक्ट कर लें, हम एकदम से मेडिकल प्रोसीजर में ना जंप करें, ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो जहां तक हाइट की बात है, हाइट में इंडियन कोस्ट गार्ड की डायरेक्शंस के अकॉर्डिंग 162 सेंटीमीटर्स मिनिमम एंड 197 सेंटीमीटर्स मैक्सिमम हाइट होनी चाहिए कैंडिडेट की, तभी वो एलिजिबल है, फिट है। Correct. एंड और साथ ही में रिलैक्सेशन है कम्युनिटी वाइज और एरिया वाइज। जैसे नॉर्थ ईस्ट के हैं, या कम्युनिटी गोरखा कम्युनिटी है, या और हिली एरियाज के जो भी ट्राइब्स हैं, इनके लिए रिलैक्सेशन, हाइट रिलैक्सेशन, तो ये सारी चीजें भी एप्लीकेबल है साथ ही साथ। और डिस्कसिंग अबाउट द वेट, वेट में द वेट शुड बी इन लाइन विद द हाइट। जो बीएमआई के अकॉर्डिंग एक चार्ट प्रिपेयर किया गया है, उस पीडीएफ में एक चार्ट Correct. है, उसमें हाइट और वेट का जो भी पैरामीटर्स है उसके अंदर आपके फॉल करना चाहिए। और साथ ही में हाइट वेट में +- 10 kg का रिलैक्सेशन है सर। तो हाइट वेट की बात कर रहा था, तो वेट में +- 10 kg परमिसिबल है। प्लस ये भी देखते हैं कि बंदे का बॉडी स्ट्रक्चर कैसा है, क्योंकि मैंने हमारे साथ जो थे कुछ जिम वाले भी थे, और साथ में तो उनका बॉडी मास बेसिक जो रहता है वो थोड़ा सा ज्यादा रहता है, तो उसमें Correct. प्रॉपर फैट का चेक करने का प्रोसीजर है। तो वो सारी चीजें भी रहती है, तो वो देख के चेक करते हैं मेडिकल ऑफिसर जो है। तो हाइट वेट के बाद चेस्ट मेजरमेंट की बात है। चेस्ट मेजरमेंट में एक्सपैंडेड और अनएक्सपेंडेड में बेसिकली 5 सेंटीमीटर मिनिमम होना चाहिए, इतना एक्सपेंशन होना चाहिए चेस्ट का, वरना वो मेडिकल स्टैंडर्ड्स के बाहर होता है, एंड इट इज ऑल्सो रीजन फॉर रिजेक्शन। तो Direction. बाकी मैंने पूरे प्रोसीजर में ये चीज देखा कि जो भी हमारे असेसमेंट कर रहे थे, ये दे ऑल वांट कि हम मेडिकली फिट हो जाएं। तो ये चाहते हैं कि हम Hmm. फिट हो जाएंगे, ऐसा नहीं पॉइंट ढूंढेंगे कि हमें रिजेक्ट करने के लिए। तो हमें बस कोऑपरेट करना है, कॉन्फिडेंट रहना है, और बाकी कोई प्रॉब्लम है तो उसका आगे प्रॉपर प्रोसीजर है। अभी तो इनिशियल मेडिकल बोर्ड है, इसके बाद हम अपील मेडिकल के लिए जा सकते हैं, उसके बाद रिव्यू मेडिकल बोर्ड है। तब तक हमारे पास काफी टाइम रहता है सर। अगर कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम है रिजेक्शन की, तो उसको हम ठीक कर सकते हैं। तो इसके बाद बीपी का टेस्ट हुआ था सर। बीपी में भी 4-5 कैंडिडेट की बीपी ज्यादा आए थे, तो वो भी कुछ रीजंस थे, वो उस वजह से। तो उसके लिए फिर बीपी बीपी के बाद ये सारी चीजें हुई। उसके बाद हार्ट रेट, पल्स रेट चेक हुआ। उसके बाद हम मेडिकल ऑफिसर के पास गए।
तो उन्होंने बाकी सारे हमारे टेस्ट देखे, जो भी हमारे ब्लड सैंपल और यूरिन सैंपल से जो मिनरल्स और लिपिड प्रोफाइल और बहुत प्लेटलेट्स, एचबी काउंट जो था, तो वो सारी चीजें देखी। तो उसमें अगर कोई पॉइंट बनता है तो वो लिख देते हैं वो पॉइंट का रीजन, अदरवाइज वो लिख देते हैं कि द कैंडिडेट इज मेडिकली फिट। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स इकट्ठा होते हैं उस रात को, और वो सारे जाते हैं मेडिकल बोर्ड में फॉर द कॉन्फ्रेंस, हम्म, क्योंकि 9th डे हमारा सारी चीजें कंप्लीट हो गई थी और अगले दिन कॉन्फ्रेंस रहता है, तो इसके साथ हमारा 9th डे भी कंप्लीट होता है। तो बीच में सर संडे और बीच में वीक में 2 डेज जो हैं ये ऑफ रहते हैं, हाफ डे रहते हैं और संडे ऑफ रहता है। तो ये भी ओके, अकॉर्डिंगली फिर सारी चीजें कैरी ऑन होती है वहाँ पे बात सर। करनी पड़ेगी, और उसके बाद हाँ correct. ये सर, सो लास्ट डे कॉन्फ्रेंस। और एक चीज मैं ऐड ऑन करना चाहूंगा ड्रेस कोड के बारे में, क्योंकि हमें भी पता नहीं था कि ड्रेस कोड क्या रहता है, क्योंकि एसएसबीज में जनरली जो ड्रेस कोड रहता है इट इज फॉर्मल, जैसे Okay, रिकमेंडेशन होता है। और जब वो चेस्ट नंबर मिलता है विद प्लस साइन, तो सारा प्रोसीजर उसके बाद फॉर्मल में ही चलता है। बट यहाँ पे ऐसा नहीं है, मेडिकल प्रोसीजर कहीं और होता है, क्योंकि कोई डेडिकेटेड हॉस्पिटल नहीं है कोस्ट गार्ड का। तो आर्मी के बेस हॉस्पिटल में ये सारी चीजें होती है। तो इट इज मतलब जो मैंने देखा सर, इट इज जनरली रिकमेंडेड कि आप फर्स्ट डे, जिस दिन हम बोर्ड प्रेसिडेंट से मिलते हैं, फर्स्ट डे भी हमारी बोर्ड प्रेसिडेंट से मुलाकात होती है, उस टाइम फॉर्मल्स में आए। एक ये बेटर इंप्रेशन डालता है, एक अच्छा आउटलुक जाता है। बाकी हमने पूछा था कि ड्रेस कोड क्या रहे, तो उन्होंने बताया था कि कैजुअल चलेगा, बट इट शुड बी अप टू द मार्क। हम ऐसा नहीं है चप्पल शॉर्ट्स में आए, इट शुड बी correct. प्रॉपर लोअर और जीन्स और एनीथिंग। तो ड्रेस कोड इज वेरी इंपॉर्टेंट। और लास्ट डे तो इट इज हाईली रिकमेंडेड कि आप फॉर्मल्स में ही जाएं, क्योंकि आपका कॉन्फ्रेंस डे है। और कॉन्फ्रेंस में इट इज जनरली कि जो बोर्ड प्रेसिडेंट इज सिटिंग, तो सीधा हमने जाना है, 3-4 कैंडिडेट्स को एक साथ बुलाते हैं। तो अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो ही और शी जो भी बोर्ड प्रेसिडेंट होगा हमें बताते हैं कि ये आपकी प्रॉब्लम है, तो आपको ये प्रोसीजर करना है। पहले जनरली वो फिट कैंडिडेट्स को बुलाते हैं, हमें लाइन में खड़ा किया जाता है, तो फिट कैंडिडेट्स जो उनको बुलाते हैं तो वो बताते हैं कि यू आर मेडिकली फिट, तो अब आप जा सकते हैं, आपका मेडिकल प्रोसीजर कंप्लीट हो गया है। तो आफ्टर दैट हमें डायरेक्टरेट ऑफ रिक्रूटमेंट को ईमेल करना रहता है, हमारा रोल नंबर, हमारा डेट, हमारा बैच नंबर, कि वी वर डिक्लेयर्ड मेडिकली फिट फ्रॉम मेडिकल बोर्ड बीएचडीसी Medical board. दिल्ली कैंट। सो ये प्रोसेस रहता है। और उसके बाद जो टेम्परेरी रिजेक्शन है, जिनको पॉइंट्स मिलते हैं, अब अलग अलग जो भी हमारे मेडिकल स्टैंडर्ड्स थे उसमें जो जो प्रॉब्लम रहती है वो सारे नोट होते हैं, और पर्टिकुलर कैंडिडेट को बताया जाता है कि ये पॉइंट्स थे, जो भी XYZ पॉइंट्स है। और उसके बाद उनको आगे का प्रोसीजर समझाया जाता है कि अपील मेडिकल बोर्ड के लिए क्या प्रोसीजर है। तो सर अपील मेडिकल बोर्ड पे मैं आना चाहूंगा। अपील मेडिकल बोर्ड में जो भी टेम्परेरी रिजेक्शन वाले कैंडिडेट हैं, जो परमानेंटली रिजेक्शन है वो तो सीधा आउट हो जाते हैं, पर ऐसे बहुत कम कैंडिडेट होते हैं जो परमानेंटली रिजेक्ट हो जाते हैं। सबको टीआर दिया जाता है, और अपील अपील मेडिकल बोर्ड के लिए उनके पास मौका रहता है। सो अपील मेडिकल बोर्ड का टाइम है 42 डेज। जिस दिन मेडिकल कॉन्फ्रेंस हुई उसके 42 डेज तक हमारे पास टाइम है। हम जब भी वो चीज ठीक करके, चाहे हमारा वेट हाइट का इशू है या बीपी का इशू है या कोई भी छोटी फ्लैट फुट वगैरह है, ये सारे अगर ठीक करके 42 डेज के अंदर एक जो भी हम चूज करते हैं कमांड हॉस्पिटल, या जो भी अपील मेडिकल बोर्ड के लिए कुछ कमांड हॉस्पिटल, कुछ बेस हॉस्पिटल हैं जहाँ पे हम अप्लाई कर सकते हैं। हम सेम बेस हॉस्पिटल दिल्ली में अप्लाई नहीं कर सकते जहाँ पे हमारा इनिशियल मेडिकल बोर्ड हुआ होता है। तो Okay. इसके लिए हमारे को कुछ फॉर्म्स भरने होते हैं। सबसे पहले अपील मेडिकल बोर्ड का एक फॉर्म दिया जाता है वहां से सर, उस फॉर्म को फिल करना पड़ता है, हमारी जो भी डिटेल्स उसमें वो आती हैं। उसके बाद एक Mhm. MRO होता है सर, मिलिट्री रिसीवेबल ऑर्डर। इसमें हमें फोर्टी Okay. रुपीज की पेमेंट करनी रहती है MRO थ्रू EMRO, या ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन किसी भी ब्रांच में जाके 40 रुपीज की। और साथ में Mhm. फोटो और फोटो आईडी प्रूफ की हमारे को एक कॉपी देनी पड़ती है। तो ये सारी चीजें डॉक्यूमेंट सबमिट होने के बाद एक AMB का फॉर्म वो हमें देते हैं, और हमने जो भी हॉस्पिटल वहाँ पे सिलेक्ट किया होता है उस पे विद इन 42 डेज जाके हम अपना वही टेस्ट Appeal. दोबारा से करवा करवा सकते हैं, अपील के लिए कर सकते हैं। और अगर वहां पे भी हमें रिजेक्शन मिलती है, वहां पे भी अगर हम क्लियर नहीं कर पाते हैं, तो फिर रिव्यू मेडिकल बोर्ड है। बट रिव्यू मेडिकल बोर्ड हमारा राइट नहीं है सर, जैसे कि हमें बताया गया था इंस्ट्रक्शन में कि अपील मेडिकल बोर्ड तक अपील मेडिकल बोर्ड इज आर राइट, बट रिव्यू मेडिकल बोर्ड में इट्स अप टू द रिव्यू मेडिकल बोर्ड कि वो हमें एक्सेप्ट करते हैं कि नहीं, कि वो हमें दोबारा टेस्ट के लिए बुलाते हैं कि नहीं। अगर उनको Oh. लगता है कि ये क्योरेबल नहीं है, Hmm. ठीक नहीं हो सकता, तो जनरली दे डोंट कॉल अस रिव्यू के लिए। तो उसके बाद वो रिजेक्ट कैंडिडेट माना जाता है। और बाकी रिव्यू होता है, अगर वहां सिलेक्ट हो जाता है तो ही इज डिक्लेयर्ड मेडिकल इफेक्ट। तो ये पूरा मेडिकल बोर्ड का प्रोसीजर था सर, ये क्या कहते हैं AMB का। उसके बाद मेरे कुछ दोस्त थे, जैसे हम 14 थे, तो आउट ऑफ 14 Sharap, वी 6 वर डिक्लेयर्ड मेडिकल इफेक्ट। Sharap, ये सर। regarding that review board, right? You told about your friends also, right? Some यस सर। four friends. Yeah, please. So this was about the whole medical procedure. So out of we 14 हम 6 मेडिकली फिट हुए थे, और रेस्ट जो भी हमारे साथ कैंडिडेट थे आउट ऑफ 14 फर्स्ट बैच से उनको टेम्परेरी रिजेक्शन दिया गया था।
तो Okay. बेसिकली सबसे ज्यादा उसमें रीजन था ओवरवेट का सर। ओवरवेट की प्रॉब्लम थी। तो ये भी बहुत हाईली रिकमेंडेड है कि हम अपने वेट को कंट्रोल करें, साथ में रनिंग वगैरह फिजिकल एक्सरसाइज को हम साथ में अपने प्रिपरेशन के कंटिन्यू रखें, ताकि हमारा वेट और हाइट का बैलेंस बना रहे। तो ओवरवेट का प्रॉब्लम था, और बाकी कुछ दो कैंडिडेट्स को हियरिंग की कुछ प्रॉब्लम थी, ईयर रिलेटेड, ईएनटी रिलेटेड, तो उनको वो भी पॉइंट मिला था। और साथ में एक हार्ट रिलेटेड इशू था एक कैंडिडेट को। तो ये सारे फिर एएमबी के लिए गए थे, अपील मेडिकल बोर्ड के लिए, और इनमें से मैक्सिमम कैंडिडेट्स फिर एएमबी में फिट डिक्लेयर कर दिए गए थे। तो नाउ दे आर मोस्टली दे आर मेडिकली फिट। सो इसके बाद कुछ चीजें मैं टिप्स ऐड करना चाहूंगा पूरे मेडिकल प्रोसीजर में, जो मेरा एक्सपीरियंस था। रिकैप भी करना चाहूंगा जो चीजें मैंने बोली। तो सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट चीज है वो है डॉक्यूमेंट्स। डॉक्यूमेंट्स हमने मिस नहीं करने सर। और उसके बाद दूसरी चीज जो मुझे लगी वो डिसिप्लिन है, एक डेकोरम हर एक इंस्टीट्यूशन का रहता है, तो वही बीएचडीसी का है, तो हमें वो मेंटेन रखना है, पंक्चुअलिटी और डिसिप्लिन के साथ। और एक सिंसियर रहकर हमें चीजों को फॉलो करना है, हमारे पेशेंट्स को हमने मेंटेन रखना है, और कोऑपरेट करना है वहाँ के जो भी स्टाफ है। और साथ में सर ये मेडिकल प्रोसीजर का ये रहा, और साथ ही में हमें एक जो डॉक्यूमेंट सबमिट करने रहते हैं विद इन 30 डेज, जो शुरू में हमें डॉक्यूमेंट्स दिए गए थे। तो उसमें बेसिकली कुछ डॉक्यूमेंट्स जो इंपॉर्टेंट है मैं हाईलाइट करना चाहूंगा। उसमें सबसे पहला हमारा अटेस्टेशन फॉर्म रहता है। ये एक काफी पेजों का एक फॉर्म रहता है, इसमें बहुत सारी डिटेल्स रहते हैं। इसमें हमें गेजेटेड ऑफिसर से उस फॉर्म को अटेस्ट करना रहता है, इसकी 3 कॉपीज रहती हैं। तो इसको हमें बहुत केयरफुली फिल करना है। इसमें बहुत छोटी छोटी माइन्यूट डिटेल्स दिए जाते हैं कि हमने कहाँ कहाँ अपना स्टे किया है, क्या हमारा रहा है, हम कहाँ कौन कौन सी सिटीज में रहे हैं, एजुकेशनल से रिलेटेड और बहुत चीजें, फैमिली से रिलेटेड, इनकम, एजुकेशन क्वालिफिकेशन और बहुत सारी चीजें। तो इन चीजों को हम बहुत केयरफुली फिल करें। और उसके बाद अगली चीज, जो भी हमारे डॉक्यूमेंट्स आज तक सबमिट हुए थे कोस्ट गार्ड में, तो वो सारी चीजें उनकी एक जेरोक्स कॉपी फिर से ली जाती है। और दूसरा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट आता है हमारा एडमिट कार्ड, जो कि जब हम रिकमेंड होते हैं उसके बाद हमारे हमें दिया जाता है वहां से अटेस्ट करके। तो वो जो एफएसबी का एडमिट कार्ड है वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, तो उसकी फोटोकॉपी भी हम रखें और ओरिजिनल को भी हम संभाल के रखें। और उसके साथ सारी जेरोक्स कॉपी सबमिट करनी रहती है, और आईडी प्रूफ। और साथ में एक सीडी प्रिपेयर करनी रहती है, उस सीडी में एक फोटो, और साथ में एक आईडी प्रूफ, प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, और एक प्रूफ ऑफ एड्रेस। दो आईडी प्रूफ जो कि आधार वर्क कर जाता है उसमें। तो ये प्रॉपर फॉर्मेट में उसमें सबमिट करना रहता है। एक क्लियर बैग में ये सारे डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। और उस क्लियर बैग के बाहर एक वाइट पेपर पे हमें सारे अपने डिटेल्स, 10 डिटेल्स होती है उसमें, हमारा नाम, हमारा डेट ऑफ बर्थ और रोल नंबर और हमारा बैच नंबर, ये सारी चीजें लिखकर पेस्ट करके हमें सबमिट करनी रहती है डायरेक्टरेट ऑफ रिक्रूटमेंट में विद इन 30 डेज ऑफ द रिकमेंडेशन। तो ये दो इंपॉर्टेंट चीजें, एक डॉक्यूमेंट सबमिशन और एक मेडिकल प्रोसीजर। और मेडिकल प्रोसीजर के बाद एक ईमेल करना रहता है डायरेक्टरेट ऑफ रिक्रूटमेंट। तो ये पूरा प्रोसीजर रहता है रिकमेंडेशन के बाद और मेरिट लिस्ट से पहले का सर। ये सारी चीजें है कवर करने की। Okay, Sharab, that was a very, a very clear explanation from your side. Like, I think नाइस। you took so much of time to put up on the paper, I think, before this interaction. I'm pretty sure about it, right? यस सर, मैं पूरी कोशिश करी क्योंकि कोस्ट गार्ड के मेडिकल के बारे में कोई ऐसा वीडियो मुझे नहीं मिला था। तो मैं यही चाहता था कि जो भी मेरा एक्सपीरियंस रहे वो दूसरों के हेल्पफुल रहे। आजकल वैसे ही सोशल मीडिया का जमाना है, तो सारी चीजें अवेलेबल रहनी चाहिए। इन्फॉर्मेशन मिसिंग थी सर यूट्यूब पे और किसी भी प्लेटफॉर्म पे। No, no, I'm really thankful for your, some kind of hard work all the time you put up for this information. For you're going to really helpful for all the candidates. And other question I would like to ask you, like, what about the smoking and drinking? Like, any things come up over there with any candidate? Like any doctor come up with okay, and something comes up like that? ये सर, ये जो भी इंटॉक्सिकेशन का रहता है ये डायरेक्टली इनडायरेक्टली हमारे मेडिकल्स को पूरी तरह से इफेक्ट करता है सर। क्योंकि Correct. इवन एक छोटी सी चीज, एक ब्लड प्रेशर है। ब्लड प्रेशर में अगर हम स्मोकिंग करेंगे तो हमारा बीपी लेवल राइज होता है। और उस टाइम पे हम अगर रेगुलर स्मोकर्स हैं, हम स्मोकिंग करके जाते हैं, तो उस टाइम बीपी लेवल राइज होगा, तो वो एक मेडिकल का पॉइंट बन जाएगा सर। ये एक बिल्कुल सिंपल सा एग्जांपल है। और वही अगर ड्रिंकिंग की बात है, ड्रिंकिंग करते तो हमारा ब्लड सैंपल होना है, क्योंकि इसमें पूरी बॉडी की एक होलिस्टिक जांच होनी है। तो इस टाइम पे ये सारी चीजें आती है और एक इम्पैक्ट डालती है सर मेडिकल उसमें। तो रिकमेंडेड है कि आप बिल्कुल ये सारी चीजें, एडिक्शन है तो इन चीजों को छोड़ के बाद ही मेडिकल प्रोसीजर में जाएं सर, और अपनी अपनी बॉडी को पूरा फ्लश आउट, डिटॉक्स करके सारी चीजें तभी मेडिकल परफॉर्म करें सर। No, no, ये yes, डिटेक्ट you हो are जाती right. है कहीं ना कहीं स्टेज पे सर। Yeah, so यस सर। about drinking or smoking, like 1 month before, I would like to suggest you that just stop it. Don't even do all those things.
right? And because definitely it will going to come in your medicals or something. So avoid it. It doesn't matter. Okay, they recommend hoga tab dekha jayega. Not like that. Don't do that. Stop that. Okay, Right, because it will right, sir. definitely come in your blood samples, or you can say any urine or something will come out automatically. Especially people are into some illegal Right, stuff like weed and all. That is also don't do that. Okay, if they found you, will be in the right, trouble. sir. Okay, and Sharab, anything else you would like to suggest or tell to the candidates? बाकी ये सारी चीजें मैंने आई थिंक मैंने सारी चीजें कवर कर ली है जो मैं चाहता Right, था बताऊं, और ताकि दूसरों के लिए हेल्पफुल रहे। बाकी और कोई प्रॉब्लम रहता है सर, पिछले वीडियो के बाद भी मेरे को काफी लोगों के मैसेजेस आए थे। सो Mhm. आई ट्राई माई बेस्ट कि मैं किसी को हेल्प कर पाऊं, क्योंकि मुझे भी थोड़ी गाइडेंस की कमी रही थी, जिस वजह से थोड़ा ये जो सक्सेस मिला है वो थोड़ा डिले हुआ है। तो मैं यही चाहूंगा कि Right. कोई भी अगर हेल्प के लिए आए तो आई एम ऑलवेज रेडी टू हेल्प सर, आई ट्राई माई बेस्ट। Okay. Sharab, thank you so much for taking out यस, time from your busy थैंक यू सर। schedule. Okay. So थैंक hope यू सर, you'll थैंक यू make सो it. मच फॉर हैविंग मी We'll सर। really like hoping for you get to the merit. Okay. And once you're थैंक यू done, सर। we'll what we can do. Maybe after training, we'll see what we can do because you already यस gave a सर। lot of information, right? So you suggested your one of your friends' number. Na? Maybe by next week or in coming days, I'll contact him. So we'll schedule one more यस सर। interview with him. With some light राइट सर। things. Okay, I'm pretty sure you'll make it to the merit. Hope for the best. थैंक यू सर। Because those थैंक यू things सर। are not in your hand. You're totally medically fit, right? No issues, anything comes up. नो सर, मेडिकली फिट सर। Anything else, Sharab, you want to say? So we're winding the session. कुछ बाकी बोलना चाहते सर हो? सारे स्टेजेस का, यस सर, सारे स्टेजेस का सीजी कैट से लेकर मेडिकल तक का एक बहुत ही एक ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस रहा है मेरा। और इन चीज़ों ने मुझे बहुत चीज़ें सिखाई है, हर एक स्टेज में एक अलग एक्सपीरियंस रहा है। तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट भी है, और हर चीज़ों का एक अलग तरीका अप्रोच करने का। तो जो चीज़ उस चीज़ को समझ जाए तो राइट टाइम पे राइट चीज़ों का होना सबसे अच्छी चीज़ है लाइफ में, मैं मानता हूँ सर। Correct. तो यही है कि अपने प्रोसेस को एंजॉय करें और लाइफ को एंजॉय करें। बाकी डेस्टिनी तो सबके साथ में ही है सर, जिसकी डेस्टिनी में जो है अल्टीमेटली वही मिलना है, बट अपने एफर्ट्स को हमें जारी रखना चाहिए, यही मैं कहना चाहूंगा सर। Okay, fine. Thank you so much, Sharab. Okay, चलो, जय हिंद, थैंक यू सर। जय भारत, take care. थैंक यू।